हैं, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को हम देख रहे हैं। ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथोनी अल्बनीज वो अभी इंडिया के विजिट पे हैं। इसको जनरल स्टडी टू इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, बायलैटरल रिलेशन बिटवीन टू कंट्री। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं। एंड आप ऑस्ट्रेलिया का सिग्निफिकेंस देखो तो क्या सिग्निफिकेंस है, इंडो पैसिफिक रीजन में लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड के टॉप 10 पॉपुलस कंट्री देखोगे उसमें ऑस्ट्रेलिया है। प्लस कुछ अभी ग्रुपिंग है जैसे क्वाड ग्रुपिंग है, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेयर इंडो पैसिफिक रीजन में हो जाता है। तो इसके रिलेटेड एक वीडियो को देख लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। This is 2014 and this is 2023. The Australia-India ties on a friendly pitch. Historically, the India-Australia bilateral relationship is based on shared values of pluralistic Westminster-style democracies, Commonwealth traditions, expanding economic engagement, and increasing high-level interaction. The end of the Cold War and the beginning of India's economic reforms in 1991 provided the impetus for the development of closer ties between the two nations. The ever-increasing number of Indian students traveling to Australia for higher education and the growing tourism and sporting links have played a significant role in strengthening bilateral relations. With the passage of time, ties evolved in the direction of a strategic relationship alongside the existing economic engagement. In September 2014, Australia's Prime Minister Tony Abbott visited India, and in November last year, Modi became the first Indian Prime Minister to make an official visit to Australia after Rajiv Gandhi in 1986. India will be very powerful because of Modi. He also became the first Indian Prime Minister to address a joint sitting of the Parliament of Australia. At the India-Australia Leaders Virtual Summit in June 2020, Modi and Prime Minister Scott Morrison elevated the bilateral relationship from the strategic partnership concluding in 2009 to a comprehensive strategic partnership. Modi and Morrison spoke by phone on 3 occasions in 2021 and met in person in Washington, D.C. and at the COP26 Climate Summit. At the second India-Australia Virtual Summit in March 2022, 7 key announcements were made, including on a letter of intent on migration and mobility partnership arrangement to foster the exchange of skills, and a letter of arrangement for educational qualifications recognition to facilitate the mobility of students and professionals. Prime Ministers Modi and Albanese met thrice last year. There has been a series of high-level engagements and exchange of ministerial visits in 2022 and in 2023. The External Affairs Minister travelled to Australia on February 18, and his Australian counterpart Penny Wong visited from February 28th to March 3rd. Australia's Education Minister Jason Clare also visited. Ties between Australia and China were strained after Canberra in 2018 banned Chinese telecom firm Huawei from the 5G network. Later, it called for an inquiry into the origins of COVID-19 and slammed China's human rights record in Xinjiang and Hong Kong. China responded by imposing trade barriers on Australian exports and by cutting off all ministerial contact. India has been facing an aggressive Chinese military along the border. New Delhi and Canberra have been assessing the Chinese challenge since 2013. The Economic Cooperation Trade Agreement, ECTA, the first free trade agreement signed by India with a developed country in a decade, entered into force in December 2022 and has resulted in an immediate reduction of duty to zero on 96% of Indian exports to Australia in value and zero duty on 85% of Australia's exports to India. India is one of the top sources of skilled immigrants to Australia. As per the 2021 census, around 9.76 lakh people in Australia reported their ancestry as Indian origin, making them the second largest group of overseas-born residents in Australia. Mechanism for mutual recognition of educational qualifications was signed on March 2nd this year. This will facilitate mobility of students between India and Australia. Deakin University and University of Wollongong
are planning to open campuses in India. 2+2 ministerial dialogue was held in September 2021, and the Deputy Prime Minister and Defence Minister of Australia visited in June 2022. The Mutual Logistics Support Agreement MLSA was concluded during the virtual summit in June 2020, and the two militaries held several joint exercises in 2022. Australia will host military operations with India, Japan, and the US in the Malabar exercises off the coast of Perth in August, and has invited India to join the Talisman Sabre exercises later this year. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को देखते हैं, तो क्या क्या सिमिलरिटी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसा इंडिया प्लूरल कल्चर है, मीन्स मल्टीपल यहाँ पे आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस मिलेगा, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड एटसेट्रा। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया प्लूरलिस्टिक कल्चर है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया में भी डेमोक्रेसी है, और वेस्ट मिंस्टर टाइप डेमोक्रेसी है। वेस्ट मिंस्टर टाइप डेमोक्रेसी जो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से इंस्पायर है, तो उसको वेस्ट मिंस्टर टाइप डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल फीचर है हमने ब्रिटिशर से बोरो किया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ का ट्रेडिशन है, दोनों कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। कॉमनवेल्थ इज ए ग्रुप ऑफ कंट्री जिसपे ब्रिटिशर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रूल कर रहे थे। देन इकोनॉमिक एंगेजमेंट हमारा एक्सपांड हो रहा है, और दोनों कंट्री के बीच में अभी प्रेजेंटली हाई लेवल इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉमन चीजें हैं। फिर मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी, सेकुलरिटी, फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो हमें कनेक्ट करता है। 1991 तक वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक यूएस लीड कर रहा था और दूसरा यूएसएसआर लीड कर रहा था। 1945 से लेके 1990 तक ये वर्ल्ड बाइपोलर में डिवाइडेड था। यूएस कैपिटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर सोशलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया उस समय यूएस का एलाइज था। इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया था कि हम ये दोनों में से किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो वहां पे कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट करेंगे, यानी किसी भी ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इंडिया में ओपन हो गया। तो उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन और ज्यादा इंप्रूव होने लगा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ कोल्ड वॉर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन 1991। अभी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में टूरिज्म भी इंक्रीज हो रहा है, और स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट वो लिंक भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के व्यूज कुछ ग्लोबल इशू पे एग्जैक्टली सेम व्यू है, जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके ऊपर सेम व्यू है। शेयर कमिटमेंट ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और वहां पे चाइना का भी ओवर अग्रेसिव एटीट्यूड है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ऐसा कहना है कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर कंट्रीज का कंडक्ट होना चाहिए कि बाकी सारे कंट्री को कंसर्न को ध्यान में लेके, किसी एक कंट्री का से बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं होना चाहिए, दादागिरी टाइप अप्रोच नहीं होना चाहिए। दोनों डेमोक्रेसी इन्होंने कॉपरेट किया है, और ये दोनों क्वाड के पार्ट हैं। तो इंटरनेशनल टेररिज्म पे क्वाड ग्रुपिंग के पार्ट हैं। थर्ड, इंडो पैसिफिक रीजन में अप्रोच क्या होगा उसको लेके ये तीनों कंट्री सेम व्यू शेयर करते हैं। उसके बाद 2009 में हमने अपने रिलेशनशिप को एक्सपांड करके और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया, और जिससे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। मीन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब होता है कि और ज्यादा डीपली हम ऑस्ट्रेलिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे। नाउ इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में चाइना एक मेजर फैक्टर है। अब क्यों चाइना मेजर फैक्टर है? इंडिया के बॉर्डर पे देखोगे तो चाइनीज अभी ओवर एग्रेसिव है, और चाइनीज पैसिफिक ओशन में भी ओवर एग्रेसिव है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइना, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइना। दूसरा, यूएस के लीडरशिप में दो ग्रुपिंग बना है। एक ग्रुपिंग है क्वाड, चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड के अंदर इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है। दूसरा ग्रुपिंग है ऑकस, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम है। तो चाइना ऑस्ट्रेलिया को यूएस के एलाई की तरह देखता है, ऐसे एनिमी की तरह देखता है। चाइना के कुछ सस्पिशन है। हुआई एक चाइनीज कंपनी है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 5G इंस्टॉल करने के लिए। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने एलिगेशन लगाया कि ये स्पाइंग कर रहे हैं हमारे अंदर, और उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। इन रिटर्न चाइना ने क्या किया कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। तो चाइना का रिलेशन क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना का रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, और ये दोनों कंट्री को एक दूसरे के क्लोजर लेके जा रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के क्लोजर लेके जा रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया ने हुआई को बैन किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंक्वायरी कंडक्ट किया कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और वेस्टर्न कंट्री का ऐसा मानना है कि कोविड-19 का ओरिजिन चाइना से हुआ और ये मैन्युफैक्चर किया गया, ये नेचुरल नहीं है। एंड चाइना के अंदर जिनजियांग रीजन है, हांगकांग है, वहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, और इसको लेके ऑस्ट्रेलिया चाइना को कंडेम कर रहा है। चाइना ने ट्रेड बैरियर इसके ऊपर इम्पोज किया और सारे मिनिस्ट्रियल कॉन्टेक्ट को कट कर दिया। इंडिया एग्रेसिव चाइनीज मिलिट्री को अपने बॉर्डर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अरुणाचल के बॉर्डर पे, सिक्किम के बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे। क्या क्या प्रेजेंट रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच में। लास्ट ईयर दिसंबर 2022 हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन किया, जिसके थ्रू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड को हम इम्प्रूव करेंगे। और इसमें हमने टारगेट लिया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड $50 बिलियन हो जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर, इसको हम टारगेट करेंगे। उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ऑस्ट्रेलिया में आप स्किल इमिग्रेंट को देखेंगे तो इंडिया वन ऑफ द टॉप सोर्स है जहां से स्किल इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग 9.76 लाख पीपल ऑस्ट्रेलिया में वो इंडियन ओरिजिन से हैं, मीन्स उनके पेरेंट्स या वो लोग इंडिया से मूव करके ऑस्ट्रेलिया में आ गए, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ओवरसी बॉर्न रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, बी इट स्टूडेंट, बी इट स्किल्ड प्रोफेशनल, बी इट पीपल इन हाई पोजीशन, इंडियंस बहुत ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व है। थर्ड एजुकेशन है। दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्ड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई कंट्री डिग्री अवार्ड कर रही है, इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो दैट इज मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, MREQ, इसको हमने किया। फिर डाइकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, और वहां पे ये अपने कैंपस को सेटअप करेंगे। मोर देन 1 लाख इंडियन स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के डिग्री को परसू कर रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अकर होता है, जहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। देन क्लीन एनर्जी, अभी लास्ट ईयर फरवरी में दोनों कंट्री ने लेटर ऑफ इंटेंट और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसको उन्होंने साइन किया था। पैसिफिक ओशन के अंदर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, विच मीन्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके वजह से आइलैंड है, कोस्टल स्टेट है, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। देन पैसिफिक आइलैंड कंट्री, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका वो पार्ट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस समिट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट 2015 में, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था, और अभी तक इसमें 121 कंट्रीज के पार्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एंड सम ग्रुप ऑफ पैसिफिक ओशियन आइलैंड वो भी इसके पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। कुछ डाउट है इन एनी टॉपिक यू कैन आस्क, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। ओके ठीक है, तो हम सेशन को कंक्लूड करते हैं।